Hello students, in our last class we studied about the first part of this lesson, the two great musicians. In this class we shall study about the second part of this lesson. We studied about the glossaries and related information. So here, before proceeding to this one, now see the difference between what is Hindustani music and what is Carnatic music. As we know that the Hindustani music is famous in the North Indians India, so North India, and the Carnatic music is famous in South India. So here what is Hindustani music means, it is based upon रागा. राग के हिसाब से क्या है जो हिंदुस्तानी म्यूजिक जो नॉर्थ इंडिया में फेमस है. द साउथ इंडिया कंसिस्ट ऑफ दिस मोस्ट प्रोबेबली द 5 states, okay, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, some part of Goa might also come, but the 5 major these states comes under South India. So here Carnatic music, in Carnatic music, so it is based upon the kirti, based about the kirti bhajanas and all. Here but the Hindustani music is based upon the ragas. So here among the famous personalities, let us study about the famous personality, that is Srimati M.S. Subbalakshmi. So Subbalakshmi was born on 16 September 1916. So here died on 11 December 2014. So famous as Nightingale of India. She has been called as Nightingale of India. Padma Bhushan awardee in 1954. Indira Gandhi Award in 1990. Sung in UNO, United Nations Organization, and winner of many awards, and also the awardee of Bharat Ratna. So what is Bharat Ratna? It is very important. The Bharat Ratna is the highest civilian award of a Republic of India, the highest. So the eminent personalities hierarchy will come like that one. First will come President, the first citizen of India. Afterwards Vice President, afterwards Prime Ministers. In the same manner, the awardee of the Bharat Ratna here is comes under this eminent personalities. जो अवार्ड्स दिए जाते हैं वो अवार्ड्स में सबसे आला तरीन जो अवार्ड है वो भारत रत्न है. भारत रत्न के बाद आता है पद्म विभूषण, बाद में आता है पद्म भूषण, उसके बाद आता है पद्मश्री, ज्ञानपीठ अवार्ड, ऐसा तो उसके कैटेगरी वाइज है. तो before going to her explanation, let us see some information related to her. So first the one line communique of then President K.R. Narayan, okay, that the President is pleased to award the Bharat Ratna to M.S. Subbalakshmi, was greeted by doyens of Indian music. Here we should communicate means, as we have studied, official intimation in Urdu it is called गुफ्तगू. तो जबकि प्रेसिडेंट के.आर. नारायण ने एम.एस. सुब्बलक्ष्मी के परफॉर्मेंस से खुश होकर उनको क्या है भारत रत्न अवार्ड देने पर मंजूरी दी, ग्रीटेड. सो हियर डोयंस मीन्स वी हैव स्टडीड आला, superior, most experienced field. So Bharat Ratna award will be given in a social service in respective of some many fields, like physics, chemistry, economics and all. Like that
in social service and regarded, she has been given a remarkable performance. So when the President Kernarand communicated with this matter, so all greeted. She was in fact the first musician to be awarded this distinction. So distinction means इम्तियाज. So क्या है, म्यूजिशियंस में सबसे पहले जो भारत रत्न अवार्ड है वो कौन लेने वाली है, ये MS सुब्बलक्ष्मी लेने वाले. When the president spoke to her over the phone before making the announcement, eyewitness said MS was rendered speechless. जब क्या है MS सुब्बलक्ष्मी को इसके मुताल्लिक मालूम हुआ कि वो भारत रत्न अवार्ड लेने जा रही हैं, उनको मिल रहा है, तो वो क्या है, आवाज़ बाख्ता हो गए, वो बात नहीं कर सके, वो तो खुश हो गए. तो रेंडर्ड स्पीच लेस मीन्स बे आवाज़ हो गए. नेक्स्ट, हाउएवर हर मोमेंट ऑफ जॉय, मोमेंट ऑफ जो खुशी है, वॉज टिंज्ड. तो टिंज्ड का मान हमने पढ़ा था रंगे, शेडेड, ओके, दैट इज रंगे हुए विथ सैडनेस. क्यों के तो उनके जो हस्बैंड थे जो आज़ादी के लिए लड़े थे, अ फ्रीडम फाइटर, वो उन त्यागराज सदाशिवम हैड पास्ड जस्ट कपल मंथ अर्लियर, चंद महीने पहले वो इंतकाल फरमा गए थे. Prominent personalities in the field of classical music congratulated her on being conferred the highest civilian award. So हर एक जो है मुहज़्ज़िब इंसान इनको खुश आमदीद करने लगा और मुबारकबादियाँ देने लगा. Renowned vocalist, so Pandit Jasraj said the event was a moment of glory for classical music in the golden jubilee year of India's independence. जब golden jubilee मनाया गया 50 साल का, तो इसमें क्या है, ये एक रिमार्केबल थिंग है. जैसा हमने देखा कि हिंदुस्तानी म्यूज़िक में कौन कौन से आते हैं, तो हिंदुस्तानी डांस है, क्लासिकल डांस है, तो हिंदुस्तानी में क्या आते हैं, ख्याल, ऐसे चीज़ें सब आते हैं. लेकिन ये क्लासिकल जो कार्नेटिक म्यूज़िक है, ये कार्नेटिक म्यूज़िक में क्या है, यक्षगाना आता है, नेक्स्ट भरतनाट्यम आता है, कचिपुड़ी आता है, मुनिवट्टम आता है, तो ऐसे डांस वगैरह आते हैं. तो उस दिन क्या हुआ, पंडित जासराज बोले कि एक बेहतरीन दिन है. डोएन ऑफ कार्नाटिक म्यूजिक सेमनगुंडी श्रीनिवास अय्यर एक्सप्रेस्ड जॉय, तो खुशी का इजहार करे कौन, श्रीनिवास अय्यर, ओवर द अवार्ड सेइंग द म्यूजिक वर्ल्ड एंड तमिलनाडु हैव बीन हॉनर्ड बाय दिस डिसीजन. तमिलनाडु स्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं, वो कह रहे हैं कौन, श्रीनिवास अय्यर, कि आज एक बड़ी खुशी का दिन है, किसे, एक म्यूजिकल वर्ल्ड को और तमिलनाडु के लिए. MS सुब्बलक्ष्मी was born on September 16, 1916. She gave her first recital at the tender age of 10. तो अपना जो परफॉर्मेंस है वो कितने साल की उम्र में दिए, 10 साल के उम्र में वो दिए. When she was asked to sing at the wedding of a friend of the family in मदुराई, तो मदुराई में अपने फ्रेंड के फैमिली के मौके पर उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया. Her seemingly effortlessness music was rooted in technical mastery, ceaseless practice, restraint, कांस्टेंट सेल्फ अप्रेजल. तो हमने इन तमाम के माने पढ़ा था. क्या है, रिस्ट्रेंट बोले तो तहम्मुल के साथ, मुस्तक़ल क्या है, कांस्टेंट, सेल्फ अप्रेजल मीन सेल्फ अपलेशन, खुद मास्टरी, उसमें महारत. तो ये जो म्यूजिक है, इसमें म्यूजिक में ये महारत हासिल किए हुए थे. नो अदर आर्टिस्ट हैड बीन as successful in blending the intentive and the reflective elements of art. So intentive का माना sixth sense, जिससे आदमी अपने तरफ रागिब हो जाए. So blending, मिलावट, तो चीज़ों को मिला के इस तरह जाहिर करना
कि इंसान वो अपने एक यूटोपियन वर्ल्ड में या ख्याली दुनिया में चला जाए। MS was the first woman recipient of संगीत कला निधि टाइटल भी उनको हासिल है। फर्स्ट वन टू पॉपुलराइज कार्नेटिक म्यूजिक इन नॉर्थ इंडिया, द फर्स्ट पर्सन who popularized the Carnatic music in the North India। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इस प्यारे देश में क्या जो हिस्सा है नॉर्थ इंडिया का जो ये ऊपरी का हिस्सा है, यहाँ पर इन्होंने इस कार्नेटिक म्यूजिक को पॉपुलराइज किया। ऑन वन सेलिब्रेटेड ओकेशन, एक सेलिब्रेटेड ओकेशन पर महात्मा गांधी ने क्या उनसे गुजारिश किया था, ये फेवरेट भजन गाने के लिए कहा था। तो उस वक्त उनको बहुत से क्या है एजाज़ात से नवाजा गया। शी वॉज कॉल्ड नाइटिंगेल ऑफ इंडिया एंड वॉज अवार्डेड भारत रत्न। भारत रत्न इनको कब दिया गया, 1958 में दिया गया। MS ब्रीथ हर लॉस्ट डिसम्बर 11, 2004 एट चेन्नई। तो इनका इंतकाल दिसंबर 11, 2004 को चेन्नई में हुआ। उसके बाद और एक पर्सनालिटी है जो म्यूजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड है, आप सभी जानते होंगे, ये हैं लता मंगेशकर जी। तो सबसे पहले लता मंगेशकर जी के कब पैदा हुए जानेंगे। बर्थ ऑन 28 सितंबर 1929। अचीवमेंट्स, मोस्ट रेप्यूटेड पॉपुलर वॉइस ऑफ इंडिया। हर एक जो म्यूजिकल वर्ड से है ये इनसे वाकिफ है। ऑनरी डॉक्टरेट इन 1990, पद्म विभूषण, सिद्ध में बोला था आपको, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री जैसा ऑर्डर है अवार्ड्स, ये जो है पद्म विभूषण अवार्ड ही है। कब मिला है इनको, 1999 में। दादा साहेब फाल्के अवार्डी, द अवार्ड हैज बीन गिवन टू द एमिनेंट इमेंस परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक के वर्ल्ड दुनिया में जो परफॉर्मेंस करते हैं उसमें हाईएस्ट अवार्ड जो दिया जाता है वो दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। हमारे कर्नाटक के एक मशहूर एक्टर हैं, उनको भी दिया गया है। क्या आप उनका नाम जानते हैं? हाँ, डॉक्टर राजकुमार जी को भी ये अवार्ड से नवाजा गया है। ये राज्यसभा मेंबर भी थी। भारत रत्न अवार्ड इनको 2001 में दिया गया है। तो चलिए एक वीडियो इनके मुताल्लिक देखें। शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो ये शहीद। अच्छा, Lata Mangeshkar, any account of Indian playback music must start and end with लता मंगेशकर। जो म्यूजिक है प्लेबैक की, तो शुरुआत जो है लता मंगेशकर जी से होती और इसका इख्तिताम भी किसे, लता मंगेशकर जी से होता। Born on September 28, 1929 at Indore, Lata Mangeshkar has been active in all walks of Indian popular and light classical music in having sung films, songs, ghazals, bhajans and pop. So she has sung
सॉन्ग्स, गाने भी गाए हैं, गज़ल भी गाए हैं, भजन भी गाए हैं और पॉप सॉन्ग्स भी गाए हैं। शी इज़ द सुप्रीम वॉइस ऑफ पॉपुलर इंडियन म्यूजिक, an Indian institution. The Guinness Book of Record listed her as the most recorded artist in the world with not less than 30,000 solo, duet and chorus backed songs recorded in 20 languages between 1948 and 1987. Today the number might have reached about 40,000. सो इनके जो गाने हैं वो गिनीज बुक रिकॉर्ड में दर्ज हैं। तो वो कुल मिलाकर कितने हैं? 30,000। किस पीरियड के दरमियान? 1948 और 1987 के दरमियान। अब वो क्या है 40,000 तक हो सकते हैं। तो उन्होंने सोलो गाया है, ड्यूएट जोड़ी से गाया है और कोरस बोले तो तमाम मिलकर गाते हैं, ऐसे वो गाए हुए हैं। Next, Dinanath Mangeshkar, her father owned a theatrical company and was a reputed classical singer. उनके जो फादर थे कौन? दीनानाथ मंगेशकर जी, वो एक अपना थिएटरिकल कंपनी रखे थे और उसके साथ साथ वो एक क्लासिकल सिंगर थे। He gave her singing lesson from around the age of 5 साल की उम्र में से ही वो उनको क्या है ये सिंगिंग के मुताल्लिक़ दर्ज दे रहे थे। Her God-given music gifts meant that she could master the vocal exercise effortlessly on first pass, and from early on she was recognized as being highly gifted singer. तो एक ही लम्हे, एक ही बार में वो बिला एफर्टलेसली, बिला मेहनत किए हुए क्या है वो हासिल कर लेते थे। However, when her father died in 1942, the onus of being the breadwinner of the family fell on लता जी। तो जो उनकी जिम्मेदारी थी उनके घर की क्या है खाने पीने का जो इंतज़ाम करना था वो किनके ऊपर पड़ गया? वो लता मंगेशकर जी के ऊपर पड़ गया। तो उन्होंने कुल मिलाकर 8 हिंदी फिल्मों में 1948 में हिंदी और मराठी फिल्मों में क्या है हिस्सा लिया ताकि घर के जो है माली हालात को सुधार सके। द फर्स्ट हिंदी फिल्म इन विच शी गेव प्लेबैक वाज आपके सेवा में। आपके सेवा में इन 1947 शी गेव हर परफॉर्मेंस, बट हर सिंगिंग वेंट अननोटिस। तो उनकी जो सिंगिंग है वो अभी तक क्या है नोटिस नहीं हुई थी, अभी जाहिर नहीं हुई थी। When Lata entered the film industry, heavier voices like उस वक्त क्या है बहुत से गाने वाले थे, जैसे नूरजहां थी, शमशाद बेगम थे, जोहराबी अम्बेला वाले थे, ruled the industry. Ironically, Lata was even rejected for शहीद। शहीद फिल्म में उनको गाने के लिए रिजेक्ट किया गया था। किसने? प्रोड्यूसर यस मुखर्जी। लेकिन गुलाम हैदर अनएबल टू यूज हर इन शहीद, तो उन्होंने क्या किया? गुलाम हैदर जी ने उनको लता मंगेशकर को दूसरे फिल्म में गाने का मौका दिया जो है फिल्म मजबूर। इसमें इन्होंने क्या गाया था? दिल थोड़ा गाना गाया था। इन 1947-49 saw the release of 4 films। तो उस वक्त क्या होता? 4 बेहतरीन फिल्म्स आती, बरसात, अंदाज, दुलारी एंड महल। तो उसमें जो है महल पिक्चर जो है उसमें आगे आने वाला जो फिल्म है गाना वो क्या महल फिल्म है उसमें एक मशहूर गाना हुआ आगे आना वाला। तो उस दौर से लता मंगेशकर फेमस होते गई। द फेनोमिनल सक्सेस मेड लता द मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द फिल्म इंडस्ट्री। शी बिकेम द मोस्ट पावरफुल वुमेन। लता sang अंडर द डायरेक्शन ऑफ ऑल टॉप म्यूजिक कंपोजर, R.D. बर्मन हो जो हो, उनके तमाम जो म्यूजिक कंपोजर हैं उनके रूबरो ये काम कर चुकी है। सो लता मंगेशकर इन फैक्ट दैट रेयर आर्टिस्ट हु रियलाइज्ड हर सर्च फॉर एक्सलेंस। या पाल्के अवार्ड विनर फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। दादा साहेब पाल्के अवार्ड भी इनको दिया गया है। लता वाज आल्सो क्राउन्ड विथ अनदर ज्वेल, इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न in 2001. So this is the explanation of the lesson. I request you to answer this question. Who was the first musician to be awarded Bharat Ratna? In which year was M.S. Subbulakshmi awarded Padma Bhushan?
Where was M.S. Subbalakshmi born? When did M.S. Subbalakshmi gave her first recital? When did M.S. Subbalakshmi pass away? Who was Lata Mangeshkar first grew in music? What are Lata Mangeshkar Guinness records? What made Lata Mangeshkar act in films in early days? Which Hindi film gave Lata Mangeshkar a breakthrough? What were the prestigious awards confirmed on Lata Mangeshkar? Okay, this is about the lesson. Thank you. Please requesting to answer these questions in the comment section.